Hello students, myself Professor Hiral Bausar from Raffel College, Vapi, and I am going to teach you subject environmental science. In last session we start our fourth unit environmental pollution, right? In today's session we discuss about the our first pollution, that is the air pollution, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उसकी डेफिनेशन, causes, effects and control measures of air pollution. So let's start today's session. Air pollution. एयर पॉल्यूशन किसे बोलेंगे? एयर पॉल्यूशन मीन्स जो मटेरियल एयर के अंदर प्रेजेंस है जो हार्मफुल है, किसके लिए? ह्यूमन के लिए और एनवायरनमेंट के लिए, वो सब्सटेंस, वो मटेरियल को हम बोलेंगे एयर पॉल्यूशन. चलिए, इंट्रोडक्शन. Air pollution problems are generally associated with the arrival of the Industrial Revolution. Population explosion has led to urban growth, extensive industrial development, and the automobile revolution. एयर पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स कैसे किससे एसोसिएटेड है? तो कैसे? द इंडस्ट्रियल revolution, population explosion, then industrial development and automobile revolution, all of which are to be blamed for the threatening to make the earth's environment inhospitable for the future generation. Okay, there are so many various definition of air pollution, but we discuss the simple one. Air pollution may be defined as the presence of materials in the air in such a concentration which are harmful to man and the environment. Presence of materials in the air in the such a concentration which are harmful to the man and to the environment. In other words, the occurrence or the addition of foreign particles, gases and other pollutants into the air which have an adverse effect on human beings, animals, vegetation, buildings and other objects is called the air pollution. Simple one definition. Now another one definition is according to Bureau of Indian Standards IS 4167 1966, air pollution is defined as the present in ambient atmospheres of substances जो प्रेजेंट है एटमोसफियर के चारों ओर फैला हुआ है, ऐसा मटीरियल सब्सटेंस जनरली रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ मैन. किससे हुआ ये रिजल्ट? द एक्टिविटी ऑफ मैन in sufficient concentration present for a sufficient time के लिए and under the circumstances such as to interfere with comfort, health or welfare of persons or with reasonable use or enjoyment of property, that is called the air pollution. Simple one, the presence in the air, the material present in the air which is harmful to man and the environment, that is called the air pollution. तो इसमें से आप कोई भी definition use कर सकते हो. चलिए, then the next one is sources of air pollution. एयर पोल्यूशन के sources क्या है? तो एयर पोल्यूशन के sources टू सोर्सेज है, नेचुरल सोर्सेज एंड मैन मेड सोर्सेज. नेचुरल सोर्सेज क्या है? तो कहाँ से ये एयर पोल्यूशन होते हैं? नेचुरल सोर्सेज मीन्स वॉल्केनिक eruptions, forest fires and biopollutants etc. वॉल्केनिक मीन्स लावा, राइट, ज्वाला विस्फोट होना, फॉरेस्ट फायर्स की वजह से होना एंड बायोपोल्यूटेंट्स, दैट इज़ द नेचुरल सोर्सेज. नाउ मैन मेड सोर्सेज, मैन एक्टिविटी की वजह से कैसे होता है? द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, ऑटोमोबाइल्स, स्टील प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज़, ये सारी इंडस्ट्रीज़ की वजह से, ये सारे इंडस्ट्री की वजह से पॉल्यूटेंट्स, जो एयर के अंदर पॉल्यूटेंट जाते हैं उससे एयर पॉल्यूशन क्रिएट होता है. तो देयर आर द टू सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, नेचुरल सोर्सेज एंड द मैन मेड सोर्सेज.
Here we will discuss some of the main types of sources of air pollution in the brief. Now these are the sources, that is the cause. Air pollution के ये causes है. First is automobile exhaust. It contains the many unburned hydrocarbons, particulate matter, carbon monoxide, carbon dioxide, oxides of sulfur and nitrogen. When fuels are not completely burned, volatile ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंटर इनटू दी एयर. तो ये क्या है? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट. ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट की वजह से इट कंटेन्स मैनी अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, पर्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन. ये सारे अनबर्न. एंड व्हेन द फ्यूल्स आर नॉट कम्प्लीटली बर्न, जब वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? VOC एंटर हो जाता है एयर के अंदर. दैट इज़ दी वॉलाइटाइल कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड. वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर हेवी वेपर प्रेशर्स एंड लो वाटर स्टेबिलिटी होती है, राइट, सॉल्युबिलिटी होती है. तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एयर के अंदर एंटर होता है जब फ्यूल्स कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं तब. देन सेकेंड वन इज़ दी स्मोक. Smoke. Industrial activity releases the large amount of smoke which carries many gases like carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen oxides besides the several other types of particulate matter. Smoke कैसे होता है? तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से होता है. इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से वो लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक रिलीज़ करते हैं. जैसे कि सारे इंडस्ट्रीज़ वाले नाइट नाइट के टाइम पे वो गैस रिलीज़ करते हैं, राइट. सुबह के नहीं करते, मॉर्निंग में नहीं करते, बट नाइट में वो करते हैं, गैसेस रिलीज़ करते हैं. देन स्मोक इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ एयर पॉल्यूशन सीन इन अ बिग सिटीज़ स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर सीजन. Smoke is a smoky mixture of carbon monoxide and organic compounds due to the incomplete burning of fossil fuels. Smoke जनरली वो कब होता है? तो विंटर सीजन में होता है. वो क्या है? तो वो एक मिक्सचर है कार्बन मोनोक्साइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड का ड्यू टू द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. देन CFC. CFC is chlorofluorocarbons. CFC are the chemicals used in the refrigeration and spray cans. वो ये किस में यूज़ होता है? तो रेफ्रिजरेशन में यूज़ होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. दे आर वेरी लाइट एंड रीच अप टू द स्ट्रेटोस्फियर वेयर दे डिप्लेट द लाइफ सेविंग ओजोन गैस. ये एयर के अंदर जाते हैं और जो ओजोन का लेयर होता है, ओजोन गैस हमारा लेयर जो हमें सेव करता है अल्ट्रावायलेट रेज से, तो वो उसे डिप्लेट कर देता है जो हमारे हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को सेव करते हैं. तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एयर के अंदर जाते हैं तो वो ओजोन लेयर को डिप्लेट कर देते हैं. देन इज़ एसिड रेन. Acid rain is another type of air pollution which occurs when the oxides of sulfur and nitrogen combine with the moisture of atmosphere. Acid rain कब होता है ये pollution? तो जब ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन कंबाइन हो जाता है एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर के साथ, तब इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड्स. दिस एसिड इज ब्रॉट डाउन बाय द rainfall. These are the causes of air pollution, that is automobile exhaust, smoke, CFC and the acid rain. Now air pollutants and its classification. air के pollutants जो एजेंट है पॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए, तो एयर पॉल्यूशन को कौन क्रिएट करता है, उसके पॉल्यूटेंट्स कौन है, तो वो हम देखेंगे. The agent which causes the air pollution is called the air pollutants. The agent which causes the air pollution is called as air pollutant. The air pollutants may be classified in the different ways as follows. तो एयर पॉल्यूशन के पॉल्यूटेंट कौन से हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर ऑक्साइड, राइट, ये सारे एयर पॉल्यूटेंट है. ओके, तो उसके भी क्लासिफिकेशन किया गया है अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, according to the chemical composition, then according to state of matter.
तो पहले देखते हैं अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, ओरिजिनली कौन सा है। तो ओरिजिनली प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स विच आर डायरेक्टली इमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर, जो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर के अंदर है, विच आर फाउंड इन द एटमॉस्फेयर सच एज द CO, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स एज स्मोक, डस्ट, फ्यूम्स, मिस्ट, रेडियोएक्टिव मटेरियल्स, जो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर के अंदर है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी पॉल्यूटेंट, जो हम डिराइव करते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स ड्यू टू द केमिकल और फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन द एटमॉस्फेयर, फॉर एग्जांपल ओजोन, देन पैन पेरोक्सी एकाइल नाइट्रेट, फोटोकेमिकल स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एक्सेट्रा, जो हम डिराइव करते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स से, राइट। देन ये हो गए ओरिजिनली जो एटमॉस्फेयर के अंदर है वो। नाउ अकॉर्डिंग टू द केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन से क्या है, तो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के अंदर हाइड्रोकार्बन्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एमाइंस एंड अल्कोहल्स, ये सारे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जो सारे अल्कोहल्स हैं। जो देन इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के अंदर आएगा कार्बन कंपाउंड CO, नाइट्रोजन कंपाउंड NO, सल्फर कंपाउंड, देन हेलोजन कंपाउंड्स, ऑक्साइडिंग एजेंट्स, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लाई एश, सिलिका, डस्ट फ्रॉम ट्रांसपोर्ट, माइनिंग एक्सेट्रा, राइट। So these are the inorganic particles. And according to the state of matter, gaseous pollutants which get mixed with the air and do not normally settle out, for example carbon, nitrogen and sulfur dioxide, ऐसे गैसेस जो डायरेक्टली मिक्स हो जाते हैं एयर के साथ, जो नॉर्मली सेटल आउट नहीं होते हैं। पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स विच comprise of finally divided into the solids or liquids and often exist in colloidal state as aerosols, for example smoke, fumes, dust, mist, fog, smoke and sprays. These are the particulate pollutants. उसे हम बोलेंगे particulate pollutants, gaseous pollutants and particulate pollution. तो ये सारे pollutant है जो एयर pollution क्रिएट करते हैं। जो एयर के अंदर ये जो एजेंट है pollutant, जो कोजेस है, जो कारण है एयर पोल्यूशन के, तो ये सारे हैं अकॉर्डिंग टू दी ओरिजिन जो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर के अंदर है। देन केमिकल कंपोजिशन, दूसरे जो एटमॉस्फेयर के अंदर है उसके साथ मिक्स होके जो बनते हैं वो केमिकल कंपोजिशन। देन is according to the state of matter. Okay, so in the next session we discussed about the effects of air pollution and the control measures of air pollution. Till then, goodbye, stay happy, stay fit. Thank you.